Namaste students. So students, today we will study about properties of definite integral. So first of all, question arises, what is the need of properties of definite integral? Students, with help of properties, we can convert complex integrand into a very simplest form, and you will see today how difficult integrands will be converted into simplest form, and we will easily integrate complicated integrals, right? So I have written 5 properties of definite integral, and apart from these 5 properties there are also some 3 properties, and I will discuss next 3 properties in the next lecture, right? So first of all, our first property is, yes, integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of z dz. ठीक है, so there are short proofs of all these properties we will do, but the proofs are not in the syllabus of CBSE part, but for understanding we will do. Okay, so the first one is integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of z dz. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास फंक्शन का वेरिएबल आपके पास यहाँ पे x है, वो चाहे z हो जाए, वैल्यूज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रल a टू बी f of x dx इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी f of z dz. इट मीन्स पहले हम आपको एग्जांपल से बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to 2 x dx. ओके, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी x स्क्वायर बाई 2. ओके, and it will be very simple. It will be upper limit, first of all upper limit 4 minus lower limit 1, it will be 3 by 2. ओके, और अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, सपोज मैं x के प्लेस पे z यूज कर लेती हूँ, देन z विल बी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा. अगेन इट विल बी z स्क्वायर अपॉन 2, 1 by 2, अगेन इट विल बी 1 by 2, इट विल बी 4 minus 1 इज इक्वल टू 3 by 2. तो इन बोथ केसेज आंसर्स विल बी सेम. इट मीन्स वेरिएबल आपके पास चाहे x है चाहे z है, वैल्यू आपके पास सेम रहेगी. तो लेट अस सी इसका प्रूफ जल्दी से देखते हैं. ठीक है, इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है. ओके, सो इंटीग्रल a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of z dz. In order to prove this, yes, first of all we will assume let integral of fx dx is equal to f of x. Okay, so therefore by fundamental theorem of integral calculus, integral a to b f of x dx, it will be f of x. Okay, upper limit अप्लाई करेंगे f of b minus f of a. Okay, similarly integral a to b f of z dz. Okay, अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर लेकर चलेंगे let integral of f of z dz is equal to fz. ठीक है, इसे एज्यूम कर लेंगे. तो सिमिलरली बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस इट विल बी f of z a to b, and you can see in both cases results will be same. Okay, both are same. That's why integral a to b f of x dx is equal to, therefore integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of z dz. Right students, so it is our first property, right? Now let us come to second property. Okay, so what is second property? According to second property, integral a to b f of x dx is equal to minus integral of b to a f of x dx. इट मीन्स अगर आपको लिमिट्स को इंटरचेंज करना है तो आपके पास जो आगे आपको एक नेगेटिव साइन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा. पहले एग्जांपल से समझा देती हूँ. मान लीजिए 1 to 2 x dx है, ठीक है, लिमिट्स को आपने अगर आपने इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, डेट इज माइनस 2 to 1 x dx. राइट, नाउ लेट अस सी इसका प्रूफ देखते हैं. इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ओके, तो इंटीग्रल a to b f of x dx. So first of all, let us assume that integral of fx dx is equal to f of x. Now, by fundamental theorem of integral calculus, yes, this is equal to f of x a to b, and after solving it will be f of b minus f of a. Okay, and now if we talk about integral b to a f of x dx, okay, so same here it will be, yes, अगर आपने b to a कर लिया then it will be f of x b to a. Okay, and it will be f of a minus f of b. Take common minus, it will be f of b minus f of a. Okay, and it will be minus of integral a to b f of x dx. So finally we have proved that is integral, therefore integral a to b f of x dx is equal to minus integral b to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। राइट स्टूडेंट्स, ओके। तो लिमिट्स अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस। राइट, ओके। नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी। यस, अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल a to b f of x dx, integral a to b f of x dx is equal to integral a to c f of x dx plus integral c to b f of x dx. It means, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास 1 2 3, सपोज आपके 1 2 3 x dx है, तो 1 2 3 के बीच में आपके पास 2 भी आता है, तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेके 2 x dx प्लस 2 to 3। ठीक है, आप इसको दो पोर्शंस में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, दो से ज़्यादा में भी कर सकते हैं, 1 to 1.5, 1.5 to 2, देन 2 से 2.5, देन 2.5 to 3। फर्दर आप और भी बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, बट इन बोथ केसेस जो रिजल्ट्स हैं विल बी सेम। आप लेफ्ट में इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके ऐड कर लीजिए या फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम रहेंगे। तो लेट अस सी इसको प्रूव कैसे करेंगे। यस, सो इंटीग्रल a to b f of x dx. So first of all, let us assume that integral of f of x dx is equal to fx. Then by fundamental theorem of integral calculus, yes, it will be f of x a to b. That is, it will be f of b minus f of a. Now come to right hand side. Right hand side similarly, integral a to c f of x dx. Similarly, it will be f of x a to c, that is f of c minus f of a. And similarly c to b f of x dx, it will be f of x c to b, that is it will be f of b minus f of c. Right, and if we subtract, that is if a to c f of x dx, sorry, अगर हम ऐड करें प्लस c to b f of x dx ऐड कर दीजिए, f of c से f of c कैंसल, and it will be again f of b minus f of a, which is same as integral a to b f of x dx, and this is equal to integral a to b f of x dx. So we have proved third property, and according to this property, integral a to b f of x dx is equal to integral a to c plus c to b. Right, and also we can generalize, हम इस रिजल्ट को जनरलाइज भी कर सकते हैं। लेट अस सी कैसे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ हमने एक ब्रेकिंग पॉइंट हम यहाँ पे लेकर चले हैं, बीच में हमने अब इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया, डेट इज a to c, c to b। ठीक है, यहाँ पे आपके पास n पॉइंट्स भी हो सकते हैं, डेट इज वी कैन राइट इंटीग्रल a to b f of x dx, डेट इज इंटीग्रल a to c1, ओके, प्लस c1 to c2, ओके, प्लस c2 to c3 up to cn minus 1 to cn plus cn to b f of x dx. So you can see here a less than c1 less than c2 less than c3 up to cn minus 1 less than cn less than b. तो इन जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है, इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास c सिर्फ आपके पास a और b के बीच में लाई कर रहा है, आपके पास n पॉइंट्स भी लाई कर सकते हैं। तो उस केस में आप इस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं, इतने सारे पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। राइट, चले नाउ लेट अस कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 0 to 2 x minus 2 dx, ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 2 x के प्लेस पे हम लिख सकते हैं दिस इज f of a minus x, here a is 2, तो we can write 2 minus x, तो 2 minus x minus 2, and it will be 0 to 2, yes, it will be minus x dx, because 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो दोनों केसेस में आंसर सेम रहेंगे, दैट इज x square by 2 minus 2x 0 to 2, upper limit 4 by 2 minus 4, it will be 2 minus 4, it will be minus 2। ओके, अब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो सेम आंसर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2, it will be minus 4 by 2, it will be minus 2। ओके,
तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है और हमें कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करना है आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स प्रूफ कि ये आपके पास प्रॉपर्टी कैसे आएगी. ओके, सो इंटीग्रल 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Okay, तो we will start from right hand side. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. राइट हैंड साइड 0 to a f of a minus x dx. ओके, तो सबसे पहले put a minus x is equal to z. Put a minus x is equal to z minus dx is equal to dz and dx is equal to minus dz. Now it's very simple. Put at the place of dx minus dz, it will be minus fz dz. Now just change the limits. When x is equal to 0, z is equal to a. When x is equal to a, z is equal to 0. And now we will use, yes, second property use कर लीजिए. माइनस साइन है, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए. एक और माइनस साइन आ जाएगा. माइनस माइनस इट विल बी 0 to a f of z dz, that is plus 0 to a f of z dz. And now we will use first property. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरिएबल आपका कोई भी हो, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम रहते हैं. तो वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल 0 to a f of x dx. तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी. दैट इज इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a minus x. राइट. ओके, नाउ लेट अस कम टू फिफ्थ प्रॉपर्टी. यस, सो द फिफ्थ वन इज yes integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज करेंगे लेट अस सी. मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 1 to 2 x square dx. ओके, तो वी कैन राइट इट एज yes 1 plus 2 3 1 plus 2 3. ओके, तो f of a plus b minus x, तो 1 plus 2 3 वी कैन राइट इट एज 3 minus x होल स्क्वायर. ठीक है, x के प्लेस पे हम फंक्शन में लिख देंगे a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज 1 प्लस 2 माइनस, दैट इज 3 माइनस एक्स. ओके, एंड नाउ यू कैन सी अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो दोनों से आपके पास सेम आंसर्स आएंगे. राइट. नाउ लेट अस सी, इसका प्रूफ देखते हैं. सबसे पहले इंटीग्रल a टू बी f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू बी f of a प्लस b माइनस x. ओके, सो इंटीग्रल a टू बी f of x dx, इंटीग्रल a टू बी f of a प्लस b माइनस x dx. ठीक है, इसको भी राइट हैंड साइड से करेंगे. ओके, राइट साइड से. तो सबसे पहले पुट a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू z माइनस dx इज इक्वल टू dz एंड dx इज इक्वल टू माइनस dz. सो इट विल बी माइनस f of z dz. स्टूडेंट्स नाउ इट्स वेरी सिंपल. लिमिट्स चेक कर लीजिए. व्हेन a यहाँ पे पुट करेंगे आप x के प्लेस पे a से कैंसिल, b आ जाएगा. b पुट करेंगे तो a आ जाएगा. लिमिट्स को फिर इंटरचेंज कर देते हैं. माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस a टू b f of z dz. And now it will be integral a to b f of z dz, and we can write at the place of zx, that is integral a to b f of x dx. Okay, let us do questions. So first of all we will do questions based on this property. That is integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x. तो स्टूडेंट्स अभी आप देखना कितना ये जो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स हैं ये कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 टू पाई रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स. ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, लेकिन देखिए प्रॉपर्टीज लगा के कितना सिंपल हो जाएगा. हाँ जी, इसको नंबर 1 सबसे पहले नेम दे देते हैं. नो अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे. तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद यस एट द प्लेस ऑफ एक्स वी विल राइट 90 माइनस एक्स. 90 माइनस एक्स पुट कर देंगे एंड वी नो कॉट ऑफ 90 माइनस एक्स. यस, कॉट ऑफ 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स and tangent of 90 minus x, this is equal to cot x. ओके, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद cot of 90 minus x यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ रूट टेंजेंट x एंड cot of 90 x नीचे रूट टेंजेंट x प्लस रूट cot x. एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल. नंबर 2, नाउ 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दीजिए. लेफ्ट को राइट को i प्लस i टू i, इट विल बी 0 टू पाई बाई 2. ओके, एंड स्टूडेंट्स व्हेन यू विल ऐड, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं ऐड करने के बाद जो एलसीएम है दोनों का सेम आ जाएगा. डेट इज रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, और आपका जो न्यूमरेटर है वो भी सेम यही बन जाएगा. डेट इज रूट 10x प्लस रूट कॉट x dx. ठीक है, दोनों कैंसिल 1
it will be 1, and integral of 1 is, yes, x 0 to pi by 2. Okay, it will be pi by 2, and finally our answer will be, yes, 2i is equal to pi by 2, and from here I is equal to pi by 4. So this implies I is equal to pi by 4. So it's very simple, students, it's very simple, right? Similarly we will do second question. सेकेंड में भी सेम यही प्रॉपर्टी लगेगी, x के प्लेस पे 90 माइनस एक्स हो जाएगा, x के प्लेस पे 90 माइनस एक्स, एंड कोटेंजेंट 90 माइनस एक्स tan x, एंड टेंजेंट 90 माइनस एक्स cot x. सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ओके, दिस इज नंबर 1. अप्लाई प्रॉपर्टी, इट विल बी 0 to pi by 2. It will be tangent 790 minus x. Okay, so it will be cotangent raised to power 7x हो जाएगा. Okay, तो we can write directly here. Okay, it will be cotangent. Similarly, in denominator it will be tangent raised to power 7x plus 4 raised to power 7x dx. Number 2. Now add कर दीजिए 1 plus 2 को, so it will be 2i is equal to 0 to pi by 2. So similarly students, when you will add, दोनों को add करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 dx. It will be x. Apply limits. So 2i is equal to again upper limit minus lower limit 0, and from here I is equal to pi by 4. So it's very simple. Similarly come to third question. Same third question में we know sin of 90 minus x cos x and cos of 90 minus x sin x. So property we will apply here, that is 0 to pi by 2 sin, here I will write 90 minus x. Similarly sin raised to power 4 90 minus x plus cos raised to power 4 90 minus x. Okay, तो sin cos में चेंज हो जाएगा, cos sin में चेंज हो जाएगा, that is I 0 to pi by 2. It will be cos raised to power 4x. It will be cos raised to power 4x plus sin raised to power 4x dx. And 1 plus 2 दोनों को ऐड कर देंगे. Same 2i is equal to 0 to pi by 2. And when we will add, it will be 1. Integral of 1 is x, 0 to pi by 2, and from here 2i is equal to pi by 2, and this implies I is equal to pi by 4. So students, you can see in these three questions हमने यूज़ की है प्रॉपर्टी, that is इंटीग्रल 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रल 0 to a f of a minus x. एंड वेरी सिंपल. आपने जब प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो तीनों केसेस में आपके पास यहाँ पे 1 बन गया है, एंड वेरी इजीली आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट? नो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो वो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग. तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कितना कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेंट लग रहा है, तो उसको आई फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम ये आई है, नंबर 1. नाउ वी विल अप्लाई प्रॉपर्टी, राइट, एट द प्लेस ऑफ एक्स ए माइनस एक्स, इट विल बी ए माइनस एक्स. एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए माइनस एक्स से, प्लस ए माइनस एक्स, दिस विल बी प्लस एक्स हो जाएगा. ओके, and it will be I is equal to integral 0 to a root a minus x upon root a minus x plus root x dx. and students, now you can see अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें 1 plus 2 अगर आप करें, ओके, तो 1 plus 2 2i is equal to, yes, it will be 0 to a. ऐड करने के बाद दोनों का एलसीएम सेम रहेगा, और ऊपर आपके पास सेम यही चीज़ बन जाएगी, that is root x plus root a minus x upon root x plus root a minus x dx, and it will be 1, and integral of 1 is x 0 to a. It will be upper limit minus lower limit 0 ही है, तो 2i is equal to a, and this implies I is equal to a by 2, and this implies I is equal to a by 2, right? तो it's very simple. Okay, similarly now let us do second question. उसमें भी सेम बिल्कुल ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट एज नंबर 1, दिस इज आई. तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आप x के प्लेस पे 7 माइनस एक्स पुट कर देंगे, इट विल बी 7 माइनस एक्स. ओके, सेम हियर इट विल बी आफ्टर पुटिंग 7 माइनस एक्स इट विल बी x. जस्ट ऐड 1 plus 2, and same here after adding, yes, after adding it will be 1. ये आपके पास 1 हो जाएगा ऐड होके, 1 dx, and it will be x. लिमिट अप्लाई कर दें,
So it will be 2i is equal to upper limit minus lower limit, and this implies I is equal to 7 by 2. Right students? So it's very simple. Okay. Okay, so our next question is, yes, integral 0 to pi by 2 log tangent x. So let us see कि इसमें property कैसे यूज होगी. First of all, we will assume that this is I, number 1. Okay, property apply कर देंगे. Put at the place of x 90 minus x. टेंजेंट 90 माइनस एक्स कॉटेंजेंट एक्स हो जाएगा. I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cot x. नाउ 1 plus 2 it will be 2i 0 टू पाई बाई 2. यस, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो log टेंजेंट x प्लस log cot x. Okay, and we can write it as log of tangent x into cot x. Okay, we can write it as log tangent x into cot x, and cot x as a 1 by tan x, 10 से 10 cancel, it will be log 1. Okay, this will be 2i is equal to 0 to pi by 2. Okay, cot को हम 1 by 10 लिखेंगे, 10 से 10 cancel, log 1 0. So finally I is equal to 0. Here I is equal to 0. Right? It's very simple. Okay. Now same second question. In second question same. First of all इसको solve कर लीजिए. I is equal to 0 to 1 log 1 minus x upon x dx. Number 1. Apply property. Now x को replace कर देंगे 1 minus x से. यहाँ पे 1 minus x लिखेंगे. It will be x upon 1 minus x. Number 2, 1 plus 2, it will be 2i is equal to, yes, integral 0 to 1. Okay, जब हम दोनों को ऐड करेंगे it will be log of 1 minus x upon x plus log x upon 1 minus x. Okay, dx. And log m plus log n, that is log mn. It will be integral 0 to 1 log of 1 minus x upon x into x upon 1 minus x. Okay, and it will be log 1 0. And finally इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा. This implies I is equal to 0. Right. Similarly we will proceed third question. Same third question में भी same यही step रहेंगे students. Yeah, this is I. Okay, property apply करेंगे. x के प्लेस में हो जाएगा 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा. इट विल बी log 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x. Okay, this is number 2. Same 1 plus 2 2i, it will be 0 to pi by 2. Yes स्टूडेंट, जब आप दोनों को ऐड करेंगे log m plus log n, सेम यही केस बन जाएगा आपके पास. कैंसिल हो जाएगा, log 1 बन जाएगा. ओके, and it will be log 1 0, 2i is equal to 0, and same here I will be 0. So it's very simple, right? Okay, let us move to our next question. So next question is, yes, integral 0 to 1 x 1 minus x raised to power 3 by 2. So students, आप देख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाता, इंटीग्रल 0 to 1, सपोज आपके पास जो फ्रैक्शन में पावर है अगर x की होती, ओके, और 1 माइनस एक्स एज इट इज होता, तो इट्स वेरी सिंपल. आप बहुत इजीली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 3 by 2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 by 2, और ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता. राइट, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? क्या इसको हम इस इंटीग्रेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? राइट, विद हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी लेट अस से यस वी कैन कन्वर्ट. तो देखिए कैसे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. इंटीग्रल 0 to 1, एट द प्लेस ऑफ एक्स वी विल राइट 1 माइनस एक्स. हेयर 1 माइनस एक्स रखने के बाद ये बन जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 3 by 2 dx. ठीक है, आप बता दीजिए, बिकॉज इंटीग्रल 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस एक्स dx. हमने प्रॉपर्टी यूज किया है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट, नाउ देयर इज नो नीड कि अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें मैं ऐड किया है. इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिना ऐड करे बस आपने जस्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी. तो इसको ऐसे लेकर चलेंगे और ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा. टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, एक्स रेज़ टू पावर 3 by 2 dx माइनस 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर 5 by 2 dx. सो इट बी एक्स रेज़ टू पावर 5 by 2 by 5 by 2 2 by 5, एक्स रेज़ टू पावर 7 by 2 by 7 by 2 इट इज 2 by 7.
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, इट विल बी 2/5 माइनस 2/7. ओके, लोअर लिमिट तो 0 ही है. सॉल्व कर लीजिए. 35. ओके, इट विल बी 14, it will be 10, so it will be 4/35. So student, it's very simple. Okay, let us do next question. तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी. x के बेस पे 2 - x हो जाएगा, यहाँ पे √x. ओके, सेपरेट कर लेंगे. इट विल बी 2x⁻1/2 dx माइनस x⁻3/2 0 to 2 dx. चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं. इट विल बी x⁻3/2 अपॉन 3/2, 2/3 यहाँ पे 4/3 हो जाएगा. 0 to 2. It will be x⁵/2 upon 5/2, 2/5 हो जाएगा. 0 to 2. Now apply limits. 4/3. It will be 2⁻3/2. Normal limit 0 ही है. It will be 2⁵5/2. Okay. So यहाँ से कॉमन लिख लेते हैं. कॉमन क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा. एक तो 2 into 2⁻3/2 कॉमन. यहाँ से बचेगा 2/3 माइनस and from here 2 common, 2 into 2⁻3/2 कॉमन होने के बाद हमारे पास बचेगा, हमें कॉमन लिया है 2 into 2⁻3/2, तो +1 एक 2/5 बचेगा. ओके, सो इट विल बी, यस वी कैन राइट इट एज 4√2. टेक एलसीएम 15, इट विल बी 6. ओके, एंड फाइनली आवर आंसर विल बी 16/15√2. Right students? Okay. So students, we have done a number of questions based on properties of definite integral. आज हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए और नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे. तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ. थैंक यू.